I'm at the newly made Baisaran Memorial, which has been constructed for those lives which were lost during that ghastly Baisaran attack. Inscripted are the names of 26 who lost their lives, including one local and 25 tourists who had come with their families to enjoy at Baisaran in Pahalgam. People in Kashmir came out for the first time in numbers to protest, to show solidarity with the families who lost their lives. It's a blot and a hard fact to forget that how the attack took place. There have been mammoth investigation which has been done, but tourists who come to Kashmir also visit this memorial in Pahalgam to pay their tribute. And you will see that all these names are inscribed. This includes somebody's father, somebody's son, somebody's husband who saw this ghastly attack take place and saw the blood being spilled of their loved ones. And on the anniversary of the Pahalgam attack, people are still paying tribute to all those who lost their life in this ghastly attack. आप यहीं पे क्यों रुके इस मेमोरियल पे? एक्चुअली हमारे भाई बहन जो यहाँ पे शहीद हुए थे वो देखने के लिए, मतलब कि कौन थे, क्या थे और कैसा हुआ, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कश्मीर आने के लिए लोग जो डरते हैं वो नहीं डरना चाहिए, वो आना चाहिए। आपको यहाँ का जो वातावरण है या माहौल है कैसा लगा पहलगाम का या कश्मीर का? बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। हर चीज़ मतलब यही नहीं लगा कि यहाँ पे किस चीज़ का डर है, कुछ है, सब चीज़ ऑल गुड है, सिक्योरिटी वगैरह सब ओके है। आपको डर तो नहीं लगा यहाँ का प्लान किससे करने से पहले कि पहलगाम है या कश्मीर है, कुछ डर लगा? सर डर क्यों लगेगा, ये भी तो इंडिया ही है सर। यहाँ पे कुछ एक साल पहले ऐसी वारदात भी हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी टूरिस्ट नहीं आए थे। नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं है यहाँ पर आओ, एंजॉय करो, वेदर बहुत अच्छा है। We are near Baisaran, and this is the road behind me which goes to Baisaran, which has been closed because of the security measures. And post Pahalgam attack, Baisaran attack, a lot of tourist places were closed, and then some of them were reopened from time to time. And Baisaran, but still is closed. We know that the sort of attack that took place at Baisaran, led to a lot of history then being written in terms of the Operation Sindoor that was launched. Behind these valleys is where the Baisaran is located, and generally people will trek or go through pony or ATVs to Baisaran Valley. But post that it has been closed, and it's been since a year since Baisaran Valley is completely closed. There's a need for the security audit to be done. But this is the valley which shook with bullets and sounds of fire, and for several days investigating agencies and also several people came here to investigate, to question, to check, and then try to file a charge sheet. But this is the place where Baisaran attack took place, and we're bringing to you the ground report. We are into 1 year of that particular attack that took place and following that Operation Sindoor. But yes, strong security measures in Pahalgam to ensure the safety. CRPF deployed, police also deployed at places. After the Baisaran attack, generally you won't have tourists coming here, but they want to know where is Baisaran, where this attack has taken place. So there are a lot of ponywalas, ATV people who come here and try to take tourists to these places, to these mountains, show them Baisaran. But yes, a year into the attack, the people of India, still remember those who lost their lives unfortunately in that particular attack. क्या मंजर था उस दिन? डिमांडें भी हैं कि यहाँ पे चीज़ें खुलनी चाहिए और जो है लोग आए यहाँ पे। तो कैसा है एक साल बाद, क्या पता लोग जो हैं अभी भी वैसे ही हैं, चाह रहे हैं कि लोग यहाँ पर आएँ? नहीं, हम तो अपने पूरे जो
हमारे देश के सब लोग हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने इस जो मुश्किल घड़ी है इसमें हम लोगों का साथ दिया, क्योंकि 22 सरन ऐसा अटैक था जिसको हम ये नहीं कि अभी 22 अप्रैल है, इसको एनिवर्सरी है, इसको हम कंडम करते रहेंगे। अब बताइए कि आपको उम्मीद है कि इस साल जो है बेहतर होगा, यात्रा भी आने वाली है और चीज़ें बदलेंगी भी? बिल्कुल बिल्कुल। हम एक गुजारिश करते, एसडीएम साहब भी आता इधर, बोलता 2 घोड़ा रखो एक क्लासिंग पर, इधर 15 घोड़ा एक क्लासिंग पर चलता। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये जिम्मेदारी है, मगर वो एक दिन में आता है, दूसरा दिन में। पूरा 1 साल से बंद है। यहाँ पे टूरिस्ट जो भी आता है यहाँ पे कोई घोड़े का काम है नहीं। हम चाहता है कि 22 सरन खुलना चाहिए, हम भी कुछ कमाएगा, बाकी तो हमारा कुछ धंधा है चलता नहीं है, बिल्कुल जीरो है। तो ये बताइए कि जिस दिन ये वाक़ा हुआ था आप कहाँ थे? हम भी यही थे। पूरा 20 मिनट में पहलगाम खाली हो गया। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट नहीं नज़र आया, लोकल नहीं नज़र आया, बिल्कुल जीरो हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद है टूरिस्ट बढ़ जाता है और भी बढ़ जाएगी, मगर 22 सरन के कारण से कोई टूरिस्ट घोड़े का काम है नहीं। अप्रैल की डेट अभी तक पहलगाम भूला नहीं है। ये वही पहलगाम है जहां पर 22 अप्रैल को गन गरजा और पूरी वादी खामोश हो गई। ये पहाड़ियां मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों पे चल के आतंकी यहां पहुंचे और यहां पर 22 सरन वादी तक गए और वहां पर गोलियों की बौछार से कई ऐसे सैलानी जो आए थे उनको मार गिरा। ये वो 22 सरन वैली है पीछे इन पहाड़ों के, जो अभी भी बंद है सुरक्षा के पहलू को देखते हुए, और वहीं पे गन गरजा और पूरा पहलगाम 20 मिनट में खाली हो गया, दुकानें बंद हो गई। लेकिन अभी भी पहलगाम जो है उस गन गर्ज से खामोश नहीं हुआ है। लोग आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं और पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी याद कर रहे हैं वो लम्हे जब पहलगाम में आतंक गूंजा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ कुछ लोगों को लगता है, आदरणीय अध्यक्ष, यहाँ कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे को मुंह पे ताला लगा हुआ है, वो बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है, और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में। All of us, every single one in this room has been influenced, taught, learned a lot from women in their lives, mothers, sisters, wives. As Rijiju ji said, of course, Prime Minister and myself don't have that wife issue. So we don't get that input, but we have
We have our mothers and our sisters. Yesterday, I was watching my sister achieve something that, in 5 minutes, achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. There's something that I also need to practice and learn, and I was feeling very proud as an older brother as she was doing that, delivering the speech in a way that is different than mine, of course. का भी प्रचार तो आपकी पत्नी ही करती है। हाँ, हमारे वाह, हमारा प्रचार 1 लाख वोट, मुझे लाखों वोट मिलता है, मेरा 1-1.5 लाख वोट मेरी धर्मपत्नी लेके आती है और मैं उनके पैर छूता हूँ। और लोग भी 3 बिटिया है मेरी, 1 बिटिया स्नाइपर आर्म फोर्स की तैयारी कर रही है। तो आप पन्नी पैर छुए लेना। हम छुई ला और सबके बड़ा विरोधी लोग के बड़ा कष्ट भाई, और क्यों नहीं छोना चाहिए? यही लक्ष्मी है, वही देवी है। हमारे दुख में जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं जब सिनेमा में स्ट्रगल करता था, वो गरीबी में मेरी पत्नी मेरा साथ दी, तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूना? वो छुआने नहीं देती, वो जब वो सो गहरी नींद में रहती है तब हम उनका पैर छूते हैं। और छूना चाहिए, ये विरोधियों को भी छूना चाहिए जो महिला के विरोधी हैं। बड़ा ताकत, और तब रवि किशन बनेंगे, तब विश्व जानेगा आपको। अब आपके काम बन गए दूर दूर तक संदेश महिलाओं के बीच में कि ऐसा कोई पत्नी व्रता है। अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध। So to be clear, you're saying that you need at least the prospects for a signed deal today and tomorrow, or else you would resume bombing Iran. Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with. But we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely incredible. You know, I built the military in my first term. I'm using it now. The military, when I took it over from Barack Hussein Obama, they had it was so depleted, so sad. And I built it in my first term. You remember those big numbers. You talked to me about it once. That's a lot of money for military. I built it. We did a great job with our military. And we're using it now and rebuilding it, too. We've done a lot of rebuilding also in my first year. Hey, thank you for watching this on CNBC TV 18. Hope you liked it. For more such interesting news and updates, follow CNBC TV 18 on all the social media platforms.